Okay, let us continue. We have classified the cost. In fact, we have taken examples of cost and then now we have classified. With the help of those examples, we will understand each and every category. And by the way, next classification is very important because we will use this classification terminologies throughout the subject. मतलब ऐसा नहीं है कि this is only for this chapter. This is for entire subject. लाइक फॉर एग्जाम्पल 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा रहेगा असेट, उसमें पढ़ा रहेगा फिक्स्ड एसेट, तो आज तक तुम फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हो। हाँ, तो वैसे ही है। चलो, व्हाट आर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज व्हाट? मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। अब ये ईच कैटेगरी जो है ना, ईच कैटेगरी दैट इज मटेरियल, employee cost, other expenses, ये each category is divided into two categories, मतलब further classification. Like for example material, so there are two types of material, direct material and indirect material. So likewise employee cost में also there are two types of employee cost, direct employee cost and indirect employee cost. Likewise expenses में also there are two categories, that is direct expenses and indirect expenses. So basically we have grouped the cost into two categories now, that is which cost and which cost, direct cost and indirect cost. Like for you can see here direct material, indirect material, direct employee cost, indirect employee cost, direct expenses, indirect expenses. So what I have done, I have grouped all the direct cost. Direct cost mein first one is direct material, direct employee, direct expenses. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल इन दिस सब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज prime cost. And indirect material, indirect employee and indirect expenses ka total in this subject will be called as overheads. Do you remember the word overheads? Yes, today only we discussed. Okay, now हर एक category का detail में जाना पड़ेगा. First cost that I will explain is direct material. So what is direct material? Very simple. Direct material is that material which forms part of the finished product. Direct material is that material which forms part of the finished product. Example, cloth for shirt is direct material. Okay, other example, if I am furniture manufacturer, तो furniture manufacturer के लिए direct material क्या है? Wood. If I am manufacturing notebooks, so notebook manufacturer के लिए direct material is what? Paper. If I am ornaments manufacturer, gold ornaments, so what is the direct material? Gold. So direct material is that material which forms part of the finished product. So what is indirect material? Indirect material is that material which does not form part of the finished product. For example, oil, grease, lubricants, nut bolts, screw, etc. All these are also there in the factory. But these don't form part of the shirt. बटन की जगह पे थोड़ी नट बोल्ट लगाएंगे, ऑयल ग्रीस थोड़ी शर्ट को लगाएंगे. So this is also material, but it is indirect material because it does not form part of the finished product. Yes sir. Okay. So open your textbook. उसमें we have direct material, page number. Come to page number 12. Page number 12 पे you have direct material cost. Just read that paragraph.
ओके, बताओ विच इज द फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल्स, वी विल कम टू दैट. ओके, एंड विच इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल. जैसे डायरेक्ट मटेरियल वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज दैट मटेरियल विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. बेसिक रॉ मटेरियल, हर एक प्रोडक्ट में कुछ तो बेसिक रॉ मटेरियल में रहता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल में एज आई मेंशन ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर फॉल करेगा रादर. देन नेक्स्ट कॉस्ट इज एम्प्लॉय कॉस्ट. एम्प्लॉय कॉस्ट में भी दो आता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय. इफ यू रिमेंबर अवर एग्जांपल, कटिंग करने के लिए जो हम लेबर चार्जेस पे कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर. स्टिचिंग करने के लिए जो हम लोग चार्जेस पे कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. भी होटल रहेगा, होटल के अंदर जो अंदर खाना बना रहा है किचन में, दैट इज विच लेबर? डायरेक्ट लेबर. लेकिन जो बाहर होटल में ऑर्डर ले रहा है, सर्व कर रहा है, टेबल साफ कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर. वैसे ही फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर में 3 एग्जांपल दिया: सुपरवाइजरी स्टाफ, inspection staff, maintenance staff. That is indirect labor. That is why I told we are discussing examples, but then we will connect it with terminology. This terminology will be used till last chapter. Last chapter तक ये words use होगा. Direct material अभी हर chapter में आएगा direct material. So direct material meaning should be clear. Of course, we don't have to buy out the definition. They will not ask you what is direct material. Short note, 2 marks. This is not the level where they ask you direct questions like this. तो direct material का meaning पता होना चाहिए. So direct material and direct employee cost. वैसे ही indirect material and indirect employee cost. Indirect employee is like support staff. Supporting staff. हर एक जगह पे रहता है ना, मूवी में भी रहता है supporting staff. वो मूवी खत्म होने के बाद क्रेडिट्स आता है, 10 मिनट में सबका नाम आता है. और स्पॉट बॉयज का भी नाम आता है. स्पॉट बॉय इज विच लेबर? इनडायरेक्ट लेबर, सपोर्ट स्टाफ, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. तो वैसे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, यू आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. देयर इज वन डायरेक्ट लेबर विच इज एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, दैट इज डायरेक्ट लेबर. बट that labor which is not directly involved in converting raw material into finished goods is indirect labor. Okay, which is the next category? Direct expenses. Now this is interesting. Why this is interesting? Because this is new. What is direct expenses? Final accounts किया है तुम लोग ने? Final accounts में direct expenses come in which account? Trading account. Indirect expense come in which account? Profit and loss. ये वो direct expenses नहीं है. इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब अलग है, डिफरेंट है. आई विल प्रूव इट. तो डोंट, दैट इज व्हाई आई टोल्ड, डोंट कनेक्ट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द सब्जेक्ट्स अनलेस एंड अंटिल वी कनेक्ट इट. तो अरे वो तो वही डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है. नो. अच्छा, एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भूल जाओ. डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में तुम वेजेस किस में लिख रहे थे? या चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं. डू यू रिमेंबर, सपोज फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में तुमको फैक्ट्री रेंट दिया रहेगा, तो कौन से अकाउंट में लिखोगे? मतलब वो कौन सा एक्सपेंस हो गया? जो गलत है, यहां पे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा. नहीं समझा मैंने क्या बोला? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. आई विल गिव एग्जांपल. डायरेक्ट एक्सपेंसेस विदाउट एग्जांपल समझेगा ही नहीं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स देंगे वन बाय वन. Okay, what is the name? Direct expense. Please don't connect the terminologies. ये सब terminologies अलग है. अकाउंट्स का डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग है. यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग है. यहाँ पे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है. एनीवेज, एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? यस और नो? Okay, what is royalty? Suppose I am manufacturing this cap. क्या ये कैप के ऊपर नाइक का लोगो बना के बेच सकते हैं हम लोग? नहीं. Why? क्योंकि वो लोगो का ट्रेडमार्क उसके पास है. Yes or no? Okay, और
ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, एवरीबडी हैज इट्स ओन ट्रेडमार्क, एवरीबडी हैज इट्स ओन कॉपीराइट. I'll give example. I will not give example from this industry. I'll give example from other industry. Say for example, like for example, ये you watch ये तुम लोग तारक मेहता देखते रहेंगे. अभी तारक मेहता देखते रहेंगे, वो तारक मेहता में कभी कोई फंक्शन रहता है तो लोग कोई मूवी का गाना बजाते हैं, बरोबर है. तो गाना जो बजाते हैं ना, वो गाने का कॉपीराइट जो है इज विद सम म्यूजिक कंपनी. तो इफ दे आर प्लेइंग दैट सॉन्ग दे हैव टू पे व्हाट, रॉयल्टी टू दैट म्यूजिक कंपनी. नहीं समझा मैंने क्या. लेकिन वही तुम एपिसोड यूट्यूब पे देखो, वो लोग गाना म्यूट कर देंगे, उनके नीचे लिखा रहता है कि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, इसके लिए हमने म्यूट किया हुआ है. क्योंकि वाई यूट्यूब बोले हम क्यों पे करें रॉयल्टी, हमको नहीं देना है. आर यू गेटिंग व्हाट? सो रॉयल्टी इज व्हाट, जो पे कर रहा है उसके लिए रॉयल्टी क्या है, एक्सपेंस है. दैट इज क्लासिफाइड इन दिस सब्जेक्ट अंडर विच कैटेगरी, डायरेक्ट. ऑफ कोर्स दैट रॉयल्टी शुड बी पेड ऑन प्रोडक्शन. Royalty is on production also and royalty is on sale also. For example, I am author. मैंने बुक लिखा, but I am not a publication house. अरे मेरे पास थोड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, तो मैं किसको पकड़ेगा, कोई प्रिंटिंग प्रेस या पब्लिकेशन. ये नीचे है टैक्समैन पब्लिकेशन, बहुत साल पहले उसने मुझे ऑफर दिया था, सर बुक लिखो हम आपका बेचेंगे. तो अगर सपोज उसने बोला, तो ही विल गिव रॉयल्टी ऑन sale of books, but that is not direct expense. Royalty on sale is indirect expense. Are you getting what I'm saying? So royalty क्या है, royalty पहले तो expense है. Do you agree with this? Of course, if you are paying royalty, it is expense. मैं फिलहाल यहाँ पे expenses या cost का ही बात कर रहा हूँ. Royalty paid, royalty paid. So if it is paid on production, of course, then इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं. रॉयल्टी ऑन सेल अगर तुम पे कर रहे हो तो इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, देन इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो रॉयल्टी का एग्जांपल मैंने तुमको दिया ना अभी. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन से फॉर एग्जांपल मैं कोई कैप बना रहा हूं, मैंने लोगो बनाया, तो लोगो के लिए जनरली ऐसा नाइकी अलाउ नहीं करेगा, बट हो सकता है वो लोग बोलेंगे, नाइकी बोलेगा प्रोडक्शन हम लोग वहां पे कर रहे हैं. अभी यहाँ पे कोई कैप मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री रहेगा, वो लोग ने नाइकी को बोला हम तुमको रॉयल्टी देंगे, हम कैप बनाते हैं, तुम्हारा इधर प्रोडक्शन करके हम बेचेंगे. अभी कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अभी शर्ट का कोई लोगो रहेगा, पीटर इंग्लैंड या लुई फिलिप, तो वो लोग बोलेंगे उसका लोगो लगाने का रॉयल्टी देना पड़ेगा. रॉयल्टी इज देयर जनरली फॉर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा. फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो सकता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल या मेडिकल लाइन में. फॉर एग्जांपल किसी ने कोई दवा बनाया फॉर सम पर्टिकुलर डिजीज, अब वो कंपनी या कोई पर्सन रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट रहेगा, उसने दवा निकाला, ये मेरा इन्वेंशन है, तो सबसे पहले वो जाके क्या करवाएगा, उसका पेटेंट. पेटेंट राइट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेटेंट राइट? प्रोडक्शन राइट, मतलब ये प्रोड्यूस करने का राइट तुम्हारे पास ही है, बरोबर है. लेकिन वो साइंटिस्ट के पास फैक्ट्री थोड़ी है, तो वो किसके पास जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी. फार्मास्यूटिकल कंपनी का यही बिजनेस है, सबका पेटेंट खरीद लेना. सपोज एक कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए के पास एक चीज का पेटेंट है, कंपनी बी उस पेटेंट को ले लेगा. इस पेटेंट इज विच टाइप ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट. इज पेटेंट सेलेबल, यस. लेकिन कोई कंपनी वाला नहीं, हम नहीं बेचेंगे, बोला ठीक है हम बनाते हैं, तो हमको फॉर्मूला शेयर कर, वो फॉर्मूला के ऊपर हम तुमको क्या देंगे, रॉयल्टी. डिड यू गेट द एग्जांपल? मतलब तुमने किसी का पेटेंट नहीं लिया, क्योंकि वो बेचने को ही तैयार नहीं है, पेटेंट उसके पास ही रहेगा, लेकिन वो बोला तू मैन्युफैक्चर कर, तो दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. ओके, सेकंड एग्जांपल, हैव यू हर्ड दिस? मोल्ड नहीं सुना है? ओके, घर पे रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर में आइस का ट्रे है, वो ट्रे इज मोल्ड. मोल्ड इज समथिंग विच गिव्स शेप टू द प्रोडक्ट. मोल्ड होता है. अब ये बॉटल, दिस बॉटल हैज गॉट इट शेप. अब ये शेप है, हर बॉटल का यही शेप होता है नहीं, तो दिस शेप, वो शेप किस में दिया जाता है,
मोल्ड, अरे वो चॉकलेट्स बनाते हैं ना, तो चॉकलेट का प्लेट होता है, मोल्ड बोलते हैं उसको। केक्स में भी मोल्ड होता है, अभी अलग अलग टाइप का शेप का केक बनता है तो उसका मोल्ड रहता है। वो मोल्ड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है वो मोल्ड। मोल्ड रेडीमेड अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने मोल्ड खरीदा तो मोल्ड के कॉस्ट को अमोर्टाइज करना पड़ता है ओवर इट्स लाइफ। अभी किसी का लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है, किसी का लाइफ लेस देन 1 ईयर होता है। क्योंकि मोल्ड कैसा होता है कि it is in glass industry, it is in metal industry, it is in plastic industry. What you do is you are putting very hot liquid into that mold every time. तो इतना हॉट वो टेम्परेचर थोड़ी, उसका अनलिमिटेड लाइफ थोड़ी है वो। yes or no, someday it will break, so उसका एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा कुछ। and estimated life need not be in years, it can be in number of units. You have studied production units method. ये सब आई होप इट इज नॉट एलियन फॉर यू। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, यू यूज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड फॉर मोल्ड, कि भाई ये मोल्ड से हम 30,000 यूनिट बना देंगे। वो 30,000 यूनिट के बाद शेप बराबर नहीं आएगा, उस मोल्ड को या तो रिकंस्ट्रक्ट फेंकना पड़ेगा, नया मोल्ड बनाएंगे। सो मोल्ड का जो अमोर्टाइज या जो भी कॉस्ट है उसको यहाँ पे क्या क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। यू कैन सी इसमें से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। दैट इज वाई टोल्ड यू डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन एंड मीनिंग इज डिफरेंट हियर, डोंट क्रॉस अप्लाई द डेफिनेशंस हियर। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम पेन मैन्युफैक्चरर, पेन बना रहे हैं हम लोग। देन से फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर आके हमको बोलता है हमको हमारे कंपनीज में ना सब एम्प्लॉयज को पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है। लो ओके, बट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। हमको रहता है ना कभी कभी कंपनी का नाम रहता है या एम्प्लॉय का नाम रहेगा ऐसा। लो ओके, हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू हैव? बोला हमारे कंपनी में 500 एम्प्लॉयज है। बड़ा कंपनी आएगा कोई, अभी फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का कोई रहेगा तो रिलायंस में तो 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते रहेंगे। तो आके बोलेगा हम लोग को है ना पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब ओके, तो नॉर्मली थोड़ी मैं वो कंपनी का लोगों ने एम्प्लॉय का नाम के साथ पेन बना के बेचता रहेगा। मैं तो नॉर्मल अपना पेन बना के बेच रहा हूँ। बट नाउ आई गेट अ ऑर्डर वेयर समबडी इज टेलिंग मी टू कस्टमाइज। मैं हमारे कंपनी का जो कलर है उसका चाहिए, ऊपर ब्लू नीचे वाइट चाहिए, उधर ब्लू में हमारे कंपनी का लोगो चाहिए, नाम चाहिए, व्हाटएवर। मतलब ओके, कितना पेन चाहिए? मतलब 500। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी चाहिए? बोला विद इन 3 days वी वांट डिलीवरी। हो सकता है उनको दिवाली में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सम ओकेशन। बहुत सारे कंपनीज का ऑफ साइट एक्सेट्रा होता है, ऑफ साइट पे वो लोग सबको गिफ्ट देते हैं, ऐसा बहुत सारे डायरी और पेन देते हैं साथ में एक्सेट्रा। तो बोला ओके, लेकिन अगर हम 3 दिन, अगर मैं 3 दिन उसका काम करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन में 500 में से 300 पेन ही मैं बना पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्पेशल डाई लगेगा। यस और नो? तो दैट इज अनदर एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेशल डाइस। क्योंकि नॉर्मली मैं वो कलर का पेन बनाना नहीं हूं। अभी वो कंपनी का जो कलर है वो कलर तो मेरे को स्पेशली खरीदना पड़ेगा ना उसके लिए। आई डोंट कीप दैट कलर विथ मी। बट इफ यू टेल मी नो दिस इज माई कंपनीज कलर, दिस इज माई कंपनीज लोगो, यू हैव टू पुट दिस कलर ओनली, कलर मेरे कंपनी के साथ मैच होना चाहिए एक्सेट्रा, तो आई हैव टू परचेज दैट स्पेशल डाई। तो दैट स्पेशल डाई बिकम्स वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसी से कनेक्टेड दूसरा, अब मैं बोलूंगा ठीक है कब चाहिए डिलीवरी? बोला 3 दिन के बाद डिलीवरी चाहिए। Even if I manufacture for 3 days, I can manufacture only, suppose for example, I have capacity to produce only 100 pens per day. अभी हर एक चीज का कैपेसिटी होता है ना। Can I stand here and teach for 18 hours a day? No, कैपेसिटी होता है ना किसी का। तो कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी क्या है? 100 पेन्स बनाने का। तो बोलो ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कैसे लोगे? कितना पेन चाहिए वो कंपनी को? 500। तुम कितना बना पाओगे? 300। हाउ कैन यू फिल दिस? हाउ कैन यू कंप्लीट दिस ऑर्डर? लेने के बाद 3 दिन बाद उसको ना बोल देंगे, नहीं नहीं हुआ। करेक्ट, यू विल डू व्हाट?
सब कॉन्ट्रैक्टिंग विच इज आउटसोर्सिंग, लेकिन ये सब्जेक्ट उसको क्या बुलाता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? 200 पेन का कॉन्ट्रैक्ट हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, बट ये इनकम्प्लीट है। सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब क्या? कंपनी किसी और को दे रहा है या मैं किसी और को दे रहा हूं? एक मिनट, कंपनी के पास से ऑर्डर किसने लिया? मैंने। अच्छा, कंपनी को 500 पेन्स का डिलीवरी कौन देगा? मैं। कंपनी 500 पेन्स का पेमेंट किसको देगा? मुझे। कंपनी को कुछ फर्क पड़ता है क्या वो पेन मैंने बनाया या किसी और ने बनाया? नहीं। अरे कंपनी को तो पता भी नहीं चलेगा। कंपनी को तुमको 500 पेन से मतलब है ना, लेकिन मैं पूरा 500 पेन नहीं बना पाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? अरे हो सकता है मैं ऑर्डर लेके पूरा 500 पेन सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूं। मैं नॉर्मल मेरा पेन बनाते रहे, कंपनी को 500 पेन से मतलब है। ओके, मैं गया सब कॉन्ट्रैक्टर के पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टर, है मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं गया किसके पास? ओके, सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई लेना देना है क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा? एक पेन बनाने का इतना, मैं 50 रुपया लेगा एक पेन का। बोला ओके, 200 पेन बना के दे। 200 इंटू 50, वो मेरे को बिल बना के देगा विद जीएसटी। अब मेरे को कंपनी से कितने में कॉन्ट्रैक्ट मिला वो सब कॉन्ट्रैक्टर को लेना देना नहीं है। वो क्या बोल रहा है, मैं कितना बना के देगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही देयर कैन बी, जैसे स्पेशल डाइज है तो सर कभी कभी इंडस्ट्रीज में देयर कैन बी व्हाट? स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हायर चार्जेस? लेकिन हमने तो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेने का। इज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूरे इक्विपमेंट को नहीं ले रहे हम लोग। क्या इक्विपमेंट किस पे ले रहे हैं हम लोग? रेंट पे, हायर पे ले रहे हैं। ओके, एग्जांपल थोड़ा डिविएट हो गया, एग्जांपल देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग में तुम कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम कंस्ट्रक्शन कंपनी, या मैं कंस्ट्रक्टर हूं या बिल्डर हूं या कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैव यू सीन वो बड़ा बड़ा क्रेन रहता है, और क्रेन्स आर वेरी कॉस्टली। In fact, there are some people who are doing business of only giving crane on rent. वो एक एक क्रेन बहुत महंगा आता है। सेकेंड हैंड वो 70-80 लाख रुपए का आता है सेकेंड हैंड। तो अभी किसी के पास 5 क्रेन रहेगा। अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं या मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मुझे क्रेन चाहिए। अब क्रेन मुझे जो चाहिए, मैं थोड़ी क्रेन खरीद के रखेगा। तो आई विल टेक क्रेन ऑन व्हाट? हायर। बोला वो क्या बोलेगा? एक दिन का 10,000 रुपया। मेरे साइट पे 30 दिन रहेगा, 30 दिन इंटू 10,000, 3 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरे लिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस। वैसे इफ आई एम डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, अभी एक ऑर्डर के लिए मैं पूरा इक्विपमेंट थोड़ी खरीदे, तो आई विल टेक इट ऑन व्हाट? हायर। हॉस्पिटल्स में भी होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल रहेगा, छोटा हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट आया, अब वो पेशेंट को एक पर्टिकुलर टेस्ट करवाना है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट नहीं है, तो हम टेम्परली वो इक्विपमेंट को बुला के जो भी है वो हायर चार्जेस हम लोग पे करेंगे। दैट इज स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस। दो दे हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल इज स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, बट वो स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस का एग्जांपल वो लोग ने नहीं दिया, वो मैं दे रहा हूं। आर यू गेटिंग? सो ये सिलेक्टिव 4-5 एग्जांपल हैं। इसमें लिखने के लिए हम एक्सेट्रा लिख रहे हैं, बाकी एक्सेट्रा है नहीं। मतलब तुम्हारे साइड से कोई भी कॉस्ट को यहां पे नहीं लिख सकते हो। मैं कल तुमको समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट कौन सा लग रहा है, तो बोला चलो डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते। नहीं, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है। तो ये 5 एग्जाम्पल राइट नाउ यू लिव विद दिस 5 एग्जाम्पल। हाँ, ये लिस्ट में कोई अमेंडमेंट रहेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर, फिलहाल कोई अमेंडमेंट नहीं। हाँ, फ्रेट। विच फ्रेट?
freight inward is in this subject not direct expenses, it is part of direct material. तो वो हम बात करेंगे आगे, we will talk about that, but it is part of what? Direct material. It is like expense incurred on purchase of raw material. तुम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, उसके ऊपर तुम एक्सपेंस करो. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. आई वेंट टू परचेस रॉ मटेरियल. सप्लायर के पास गया, सप्लायर को बोला रॉ मटेरियल चाहिए. बोला ओके, कितने का रॉ मटेरियल? बोला 100 रुपीज एक. ओके, एंड वो 100 रुपीज को मेरे प्रीमाइसिस तक ट्रांसपोर्ट करने का 5 रुपया. माई कॉस्ट इज 105. तो आई कैनॉट से 100 इज डायरेक्ट मटेरियल, 5 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? इन दिस सब्जेक्ट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उतना याद रखो. इसके ऊपर आगे जब हम जाएंगे तो दिस पॉइंट विल गेट क्लियर. बट फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हम डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे. सो दिस इज अवर नेक्स्ट कैटेगरी. ओके, बोलो कौन सा कैटेगरी हो गया? फर्स्ट कौन सा हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया. ओके, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, और कौन सा हो गया? डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया. एंड नाउ रिसेंटली विच वन वी हैव कंप्लीटेड? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रेसिडुअल कैटेगरी. जो इधर नहीं आता है, जो इसमें नहीं आता है, जो थर्ड में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, वो जो बचा गया वो उसमें आएगा. तो इसका एग्जांपल्स तो अनलिमिटेड है. दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. I can give 3-4 example. Factory rent, factory power, depreciation on factory fixed assets, factory insurance, maintenance, ये सब indirect expenses. Warehousing rent is indirect expense. Sorry, correct. Warehousing rent is indirect expense. फर्दर क्लासिफिकेशन. ओके, मेरे को बताओ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों का टोटल किसको बोलते हैं? मतलब ये तीनों का टोटल को ये सब्जेक्ट में क्या नाम दिया गया है? एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ये सब्जेक्ट में क्या नाम दिया गया है? ओवरहेड्स. एंड ये इमेजिन करो, ओवरहेड्स पे देयर इज अ सेपरेट चैप्टर. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. इनफैक्ट ओवरहेड्स चैप्टर में जो तुम पढ़ोगे वो थोड़ा बहुत तुम अकाउंटिंग में भी या एडवांस अकाउंटिंग में भी यूज करोगे. ओवरहेड्स चैप्टर में जो तुम पढ़ने वाले हो ना, वो तुम एडवांस्ड अकाउंटिंग में AS2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में यूज करोगे. ये सब्जेक्ट में तो तुम थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज करोगे, एंड थोड़ा बहुत FM में भी यूज करोगे. That is why overheads is a very important chapter, and why it is important chapter that you will come to know when we reach that chapter. लेकिन वो चैप्टर पे पहुंचने तक वी हैव टू मैच्योर इन दिस सब्जेक्ट. मतलब डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर ओवरहेड्स चालू किया तो ओवर स्पेस हेड्स ऐसा हो जाएगा. इट इज अ स्लाइटली हैवी चैप्टर. इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन कि मैं क्या बोल रहा हूं. आई कैन गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि वो ओवरहेड्स चैप्टर में तुम पढ़ोगे क्या. ठीक है, मैं तुमको एक सिनेरियो देता हूं. वो सिनेरियो से तुमको समझ में आ जाएगा कि वो ओवरहेड्स चैप्टर में तुम्हारे साथ होने क्या वाला है. वेरी सिंपल एग्जांपल. मैं ये इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं. दिस बैच स्टार्टेड ऑन 29th May, correct? Is the fees already told to you? Okay. What is the fees per student? 70,000 एग्जाम्पल. चलो राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं. GST VST सब हो तुम निकाल दो. तुम है ना GST टैक्स का तो ये सब्जेक्ट में बात ही मत करो. ठीक है, ये सब्जेक्ट में टैक्स का बात होता ही नहीं. टैक्स के लिए अलग पेपर है ना, टैक्सेशन, उधर बैठ के पूरा टाइम टैक्स करते रहना. ये सब्जेक्ट में टैक्स किधर भी आएगा ही नहीं. देयर इज नो टैक्स. तो 70,000. ओके,
70,000 इज फॉर फुल बैच। हाँ, ये सबका मिला के 70,000 है क्या? नहीं। तो पर स्टूडेंट का 70,000 कैसे फाइंड आउट किया रहेगा? मतलब ऐसा आजू बाजू क्लासेस में घूमे रहेंगे, तुम्हारा कितना है, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बोलते हैं इसको। एयरलाइंस में ऐसे ही होता है, या होता था मैं भी। एक मिनट, तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? हाँ, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मतलब क्या? हाँ, तो जो बाजू वाला चार्ज करता रहेगा, बोला ये लगा दो काउंटर पे ये भाव, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। व्हाट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस। उल्टा हो सकता है क्या? पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, फिर उसमें से प्रॉफिट माइनस किया, फिर जो बचा वो कॉस्ट, अभी ये कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाओ। इज इट पॉसिबल? इट इज कॉल्ड एज टारगेट कॉस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? और टारगेट कॉस्टिंग का एग्जांपल टाटा नैनो। कभी सुना है टाटा नैनो? तुम बहुत छोटे रहोगे तभी टाटा नैनो आके बंद भी हो गया अभी तो। टाटा नैनो क्या था? टाटा नैनो कार। और जब एक टाटा नैनो अनाउंस किया था ना, तभी उसने क्या बोला था? 1 लाख में गाड़ी देगा। मारुति वाले ने, जो भी मारुति का तभी चेयरमैन था, ओपनली गाली दिया था। ओपनली बोलते नॉनसेंस दैट। ओके, बोलते 1 लाख में गाड़ी ही नहीं बना सकते, बिकॉज दैट टाइम चीपेस्ट कार वॉज मारुति 800 फॉर 1,97,000 के 96,000। आई रिमेंबर। टाटा नैनो 1 लाख में देगा। उसके तो सीए फाइनल में एक चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज टारगेट कॉस्टिंग, उसमें मैं ये पूरा एग्जांपल देता हूँ। उसको पूरा एग्जांपल में 40-45 मिनट्स पूरा एग्जांपल समझाता हूँ। एनीवे, अभी शॉर्टकट करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग 1 लाख। व्हाट वाज अनाउंस्ड फर्स्ट? सेलिंग प्राइस। ओके, क्या वो सेलिंग प्राइस मतलब उसमें गाड़ी बनाएंगे? नहीं, उसमें से उल्टा जाओ, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। तो बाकी जो बचा वो क्या है? टारगेट कॉस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टारगेट कॉस्ट? अभी इसमें गाड़ी बनाओ, ये खर्चे में गाड़ी बनाओ, एंड देयर कम्स कॉस्ट रिडक्शन एंड इट्स टेक्निक्स। तो वहां से हम कनेक्ट करते थे पूरा चैप्टर। एनीवेज, टारगेट कॉस्टिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो कैसे डिसाइड करने का सेलिंग प्राइस? अरे अभी तो डिसाइड किया हम लोग ने। यानी मोस्ट ट्रेडिशनल वे क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये सब याद रखो, ये एसएम में भी आएगा। ये हम यहाँ पे प्रवचन या ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। दिस ऑल इज नेसेसरी थियरी विच इज कॉल्ड एज विच प्राइसिंग? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस, द प्लस एलिमेंट रेफर्स टू द प्रॉफिट एलिमेंट। अरे कोई कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ी बेचेगा, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? ओके, तो चलो तुम्हारा फीस डिसाइड करते हैं। तुम्हारा फीस कैसे डिसाइड किया रहेगा? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दैट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वाज फॉलोड। ओके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को साइड पे रखो, किसको पकड़ेंगे? क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कब से। हाँ, तो कौन सा कॉस्ट? विच कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन योर फीस? 1 बाय 1 लिस्ट बोलो। चलो, सपोज तुमको बोला गया कि ये बैच बना रहे हैं हम लोग, ये बैच इंटर का चालू हो रहा है, ये बैच का फीस डिसाइड करने का है, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आप बताओ ऐसा कौन सा, कैसे कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे पहले क्या लूं? टेक्स्ट बुक का कॉस्ट लेंगे। ओके, कैसे लेंगे टेक्स्ट बुक का कॉस्ट? अरे ये नाम इसको है ना छुपा देते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ क्लीन स्लेट। हाँ चलो, कुछ नहीं है तेरे सामने, उसके लिए सब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है। कोई लेमैन, डू यू थिंक एवरी बिजनेसमैन हैज स्टडीड कॉस्ट अकाउंटिंग? नो। नीचे रामलाल वड़ा पाव है, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहेगा? नहीं। फिर भी वड़ा पाव का प्राइसिंग क्या है ना उसने। हाँ, तो कैसे डिसाइड करने का? हम लोग तो फिर भी क्लासेस का बात कर रहे हैं। कैन यू गो स्टेप बाय स्टेप? कौन सा रॉ मटेरियल? टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक का कॉस्ट। अच्छा, बाय द वे मेरे को सब कॉस्ट सार्वजनिक चाहिए कि पर स्टूडेंट चाहिए? तो कैसे फाइंड आउट करने का टेक्स्ट बुक का कॉस्ट पर स्टूडेंट? हाँ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहाँ से ढूंढूं नंबर ऑफ स्टूडेंट? तुमको जब सेमिनार दिया था, जब फीस डिसाइड कर रहे थे, तब तो पता ही नहीं था नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने वाले हैं। एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, मतलब मैं रॉ मटेरियल में पहले टोटल कॉस्ट ढूंढूं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात छोड़ दो, मैं टेक्स्ट बुक का कॉस्ट पर स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करूं? अलग दिशा में मत भटको।
एक टेक्स्ट बुक को प्रिंट करने का कितना खर्चा लगेगा? ओके चलो, अभी कोई लॉजिकल बात कर रहा है, एक टेक्स्ट बुक को प्रिंट करने का कितना, वो कैसे फाइंड आउट करने का? एक पहले प्रिंट करके देखो कितना होता है। अरे पहले डिसाइड होता है टेक्स्ट बुक का नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, उससे भी पहले डिसाइड करता है कितने टेक्स्ट बुक देने हैं। अरे एडवांस्ड अकाउंटिंग का 3 बुक मिलेगा, लॉ का 1 बुक मिलेगा अज्यूमिंग, टैक्सेशन का 2 बुक मिलेगा, एक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक मिला, ऑडिटिंग का 1 बुक मिलेगा, एफएम का 1 बुक मिलेगा, एसएम का 1 बुक मिलेगा। तो सपोज टोटल ऑफ नंबर ऑफ पेजेस हो गया 2000 एग्जाम्पल, उससे ज्यादा ही होगा, 3000 पकड़ते हैं चलो। और टेक्स्ट बुक को टाइप करने का वो सब करने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। प्रिंट करने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो ये सब मिला के से फॉर एग्जाम्पल पर पेज, एग्जाम्पल चलो अपने को तो मालूम नहीं है, पर पेज हो गया से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेने में क्या है, 50 रुपया पर पेज। ज्यादा लग रहा है तो 40 रुपया पकड़ो चलो। कितना पेजेस देने वाले हम लोग? 3000। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना होता है? 1,20,000। तो स्टूडेंट का 1,20,000 रुपया फीस, तुम्हारा तो 70,000 रुपया। नहीं, फिर से रिवर्क करते हैं चलो। 3,000 रुपया। अरे 3,000 पेज का, एक स्टूडेंट को 3,000 पेज मिलने वाला, तुम 3,000 पेज सब मिला के 3,000 पेज पढ़ने वाले हो कि इसको 3,000 पेज, इसको 3,000। अच्छा चलो ठीक है, चलो 10 रुपया पर पेज पकड़ो, चलो 10 रुपया पर पेज। आई विल टेल यू वाई, बिकॉज टाइपिंग तो हम एक ही बार करवाने वाले ना, प्रिंटिंग का कॉस्ट हम लोग को ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइपिंग का तो एक ही बार लगेगा। तो चलो 10 रुपया पकड़ लेते हैं, तो 3,000 इंटू 10 रुपया पकड़ेंगे, ठीक है चलो 30,000 रुपया टेक्स्ट बुक का कॉस्ट हो गया। बोलो नेक्स्ट। टीचर्स फीस। टीचर्स फीस हम लोग पर स्टूडेंट देते रहेंगे। नहीं नहीं, ये एक एडमिशन हुआ तो मेरे को 1,000 रुपया मिलेगा पर आवर, बरोबर है। तो पर स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करने का? मत करो, सोचना भी मत करने का। ओके, दूसरा कॉस्ट बोलो। सिंपल एग्जांपल, रेंट है, रेंट। ओके, रेंट भी हम लोग पर स्टूडेंट देते रहेंगे क्या? नहीं, उधर बाहर लैंडलॉर्ड खड़ा ही है, एक एडमिशन हुआ, 500 रुपया रेंट लिख। नहीं, ओके, तो रेंट इज पर स्टूडेंट? नहीं। मंथली है तो क्या पकड़े इधर का? 2 लाख रुपया रेंट पकड़ लेता है एग्जाम्पल, अपने को तो मालूम नहीं, 2 लाख रुपया रेंट है। अच्छा, ये प्रीमाइसिस में तो खाली तुम्हारा ही लेक्चर हो रहा है? नहीं, अच्छा सुबह को यहाँ पे 11th भी हो रहा है, वहाँ पे 12th और फाउंडेशन भी हो रहा है, तो रेंट सिर्फ तुम्हारे पास से ही हम लोग निकालेंगे। तो पर स्टूडेंट कैसे ढूंढने का? सोचना भी मत करने का। उसके लिए चैप्टर है ओवरहेड्स। रेंट इज विच कॉस्ट? अरे इनडायरेक्ट। देखो, तुम वेरिएबल फिक्स में मेरे को मत लेके जाओ, बिलीव मी, तुम्हारा वेरिएबल फिक्स का डेफिनेशन ने मेरा वेरिएबल फिक्स का डेफिनेशन अलग है। सी, वन थिंग यू अज्यूम, देर इज नो शेम इन अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मतलब मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हारी सांस नहीं है, बिलीव हमको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा बड़ा बड़ा वर्ड मत फेंको, फिक्स कॉस्ट हमको मालूम है, फिक्स कॉस्ट आएगा 3rd लेक्चर में, फिलहाल हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। दैट इज वाई देयर इज सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। उसमें सिखाया जाएगा कि सब कुछ पर स्टूडेंट में कैसे लेके आने का। अभी रेंट को पर स्टूडेंट कैसे लेके आओ, वो बाहर मैडम जो बैठे हैं उनका सैलरी, डू यू थिंक उनका सैलरी तुम्हारे फीस में इंक्लूडेड है? हाँ, तो कैसे? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वो मैडम का सैलरी, इधर जो साफ सफाई करने आता है उसका सैलरी, वो सब खर्चा तुम्हारे पास से वसूल हो रहा है, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रॉफिटेबल। नो, एक भी खर्चा थोड़ी बिजनेसमैन बेयर करेगा। एनीवेज, कुछ भी अभी करने का मत सोचो, वी विल टेक स्टेप्स। चलो, ओवरहेड्स को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रिंटिंग मिस्टेक। हम लोग पैसा काटेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी तुम टेक्स्ट बुक में ये अज्यूम करो कि पास होने वाले हो और पेंसिल से कट करके लिखो। वहां पेंसिल से करो प्लीज। आई थिंक ये सब इंस्ट्रक्शन तुमको दिया गया है अकाउंट्स में, तुमने जो भी करेगा इसमें तुम पेंसिल से करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो फटाफट। ओवरहेड्स इज क्लासिफाइड इनटू व्हिच 3 कैटेगरीज? फास्ट। विच इज द पेज नंबर 4? पेज नंबर 4 पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का और 3 नाम है, बोलो विच आर द 3 नेम्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा वर्क्स ओवरहेड्स एंड तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। बोलो नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन राइट नाउ के लिए तुम लोग छोड़ दो। अज्यूम करो कि डायग्राम इधर ही खत्म हो रहा है। ओवरहेड्स के अंदर 3 ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फर्स्ट वन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरी सिंपल। प्रोडक्शन ओवरहेड्स नाम में ही है, दीज आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री। I repeat, these are those indirect expenses या indirect costs या overheads which are incurred in the factory. Example factory rent. देखो कोई भी क्लासिफिकेशन करना है ना तो उसका रूल इज सिंपल, कभी भी क्लासिफिकेशन ऊपर से करो, नीचे से वो क्लासिफिकेशन मत करो। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगा, यू विल डू द क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल सुपरवाइजर सैलरी, इज इट कॉस्ट? ओके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? व्हाई इट इज इनडायरेक्ट? बिकॉज वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है, मतलब वो ओवरहेड्स हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, दीज 2 टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। कभी कभी क्वेश्चन लिखेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो क्या समझने का? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब व्हाट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। कभी कभी वो लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, ये लोग का कोई ईमान धर्म नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, in essence what they are talking about. So indirect cost मतलब overheads. तो supervisor salary is overheads. Do you agree? Okay. So ये supervisor salary is which overheads? Supervisor किधर होता है? फैक्ट्री में होता है. That is why it is which overheads? Production overheads. Yes or no? Okay. Second example. Power. फैक्ट्री पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। नॉर्मली वी डोंट यूज द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मशीन्स को हॉर्स पावर चाहिए, उनको पावर चाहिए। एनीवेज, पावर इज इट कॉस्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वाई इनडायरेक्ट? मतलब किस में आता है पावर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, दैट मीन्स इट इज ओवरहेड्स। विच ओवरहेड्स? प्रोडक्शन ओवरहेड्स बिकॉज इट इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री। मशीनरी कॉस्ट ही नहीं है तो आगे क्लासिफिकेशन करना ही नहीं है। मशीनरी कॉस्ट है कि असेट है? ऑफिस स्टाफ सैलरी, इज इट कॉस्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वाई? वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है, मतलब वो ओवरहेड्स हो गया, तो इट इज विच ओवरहेड्स? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑडिट फीस, is it cost? Direct or indirect? Why? Indirect expenses. Don't say indirect labor. Chartered accountant is not labor. Audit fees मतलब वो तुम्हारे घर पे आके पगार पे नहीं बैठा है, वो indirect expenses बोलेंगे। ओके ठीक है, मतलब it is overheads basically। तो बोलो which overheads? Administrative overheads. General manager salary, is it cost? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स हो गया। विच ओवरहेड्स? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। एडवर्टाइजिंग क्या है? सेलिंग। एडवर्टाइजिंग क्यों करने का? फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। अभी बहुत जन ने एग्जांपल दिया था, वेयर हाउस रेंट। Warehouse rent, is it cost?
डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स हो गया वो, विच ओवरहेड्स है ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेरे को क्लासीफाई करना रहेगा, तो सेलिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन। फिनिश्ड गुड्स आर लाइंग इन वेयर हाउस वेटिंग टू बी, तो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये डोमिनोज बहुत जन चिल्ला रहे थे, तो डोमिनोज वाले लोग ने वो साइकिल, साइकिल नहीं हो क्या, मोटरसाइकिल रखे ना, फ्री होम डिलीवरी 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, पता नहीं अभी है कि नहीं वो, अच्छा अभी नहीं है, ओके, मार्केटिंग गिमिक। सो वो सब जो स्कूटर्स है उसका पेट्रोल, उसका डेप्रिसिएशन, इज इट कॉस्ट? यस, विच कॉस्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स हो गया, विच ओवरहेड्स? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी हेड ऑफ कॉस्ट पे एक चैप्टर है, मटेरियल पे मटेरियल चैप्टर, एम्प्लॉय कॉस्ट एम्प्लॉय चैप्टर, ओवरहेड्स ओवरहेड्स पर चैप्टर। वो ओवरहेड्स के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब का ट्रीटमेंट दिया गया कि कैसे उसको ट्रीट करने का कॉस्ट अकाउंटिंग। सो राइट नाउ इफ यू समराइज टिल हियर व्हाट वी हैव डन, क्योंकि इससे आगे हम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। सो टिल हियर इफ यू आस्क मी व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कॉस्ट, वी हैव डिस्कस कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव नॉट डन क्लासिफिकेशन फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू भी करोगे ना तो भी क्लासिफिकेशन यही है, क्योंकि कॉस्ट को तुम कोई भी इंडस्ट्री पकड़ के रखो, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन यही आएगा, मटेरियल, एम्प्लॉय, अदर एक्सपेंसेस। हाउएवर सर्विस में एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा रहता है, सर्विस में विच कॉस्ट इज लेस, मटेरियल कॉस्ट इज लेस, विच कॉस्ट इज हायर। बट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सा है? मटेरियल। इंडिया में ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट है उसका 60 to 65% इज मटेरियल कॉस्ट। तो फर्स्ट कॉस्ट इज मटेरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल पे पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में। वैसे ही वी हैव एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट पे पूरा चैप्टर है। वैसे ही ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स पे पूरा चैप्टर है। तो हर एक कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करने का और एक्सेट्रा वो सब दिया गया है। ओके, नाउ फॉर द टाइमिंग हम इंट्रोडक्शन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि सी यू कैन सी माई चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। विच आर द 3 चैप्टर्स? एक तो इंट्रोडक्शन, तो फिलहाल हम लोग ने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर लिया है। नाउ वी आर एलिजिबल टू गो फर्दर इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट में हमको एंटर करना है। कहीं से तो एंटर करेंगे ना, तो लास्ट से थोड़ी एंटर करेंगे, तो कहीं से तो हमको एंटर करना है। व्हाट इज द एंट्री पॉइंट? हाँ, तो थोड़ा बहुत अभी हमको ये सब्जेक्ट के बारे में पता है, थोड़ा बहुत हमारे पास बैकग्राउंड भी है, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज भी हम जान चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक वन स्टेप अहेड इन दिस सब्जेक्ट। आई हैव गिवन यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट आई हैव रिटन? 4। विच इज द फर्स्ट वन? ascertainment ऑफ कॉस्ट। तो बराबर है, उधर ही रहो। ascertainment ऑफ कॉस्ट मतलब क्या? टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू डिटरमाइन कॉस्ट, टू फाइंड आउट कॉस्ट। तो फाइंड आउट कॉस्ट, तो कैसे फाइंड आउट करने का और उसको कैसे प्रेजेंट करने का, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनता है, एंड द स्टेटमेंट का नाम इज व्हाट? कॉस्ट शीट। व्हाट इज द नेम? कॉस्ट शीट। ओके, ये शीट वर्ड तुमने पहले भी सुना हुआ है, बैलेंस शीट। तो शीट मतलब क्या? बेसिकली स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, यस और नो? सो बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट है, तो कॉस्ट शीट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, बट दिस इज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? कॉस्ट। ओके, कौन से कॉस्ट बैलेंस शीट में दिखेंगे? सॉरी, कॉस्ट शीट में दिखेंगे, नॉट बैलेंस शीट। बेसिकली कॉस्ट शीट में सब कॉस्ट दिखेंगे। कौन से कॉस्ट दिखेंगे? सब कॉस्ट दिखेंगे, लेकिन हम वो कॉस्ट को और एक तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कॉस्ट शीट में मेन हेड्स ऑफ कॉस्ट कौन से हैं, थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल इन इंटर यू विल स्टडी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विच इज गिवन अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इनफैक्ट फाउंडेशन में भी शायद तुमने देखा होगा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो वैसे ही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ओनली थिंग इज ये कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो किसी लॉ में नहीं दिया गया है, तो इट इज
यू कैन से कन्वेंशनली फॉलोड फॉर्मेट, मतलब बहुत सालों से पब्लिक फॉलो करते आ रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट ने भी ओवर द पीरियड. इनफैक्ट दिस इज द सिलेबस वेयर कॉस्ट शीट करके एक सेपरेट चैप्टर है. कॉस्ट शीट को इज्जत दिया गया है. जब हम स्टूडेंट थे तब सीए में कॉस्ट शीट चैप्टर ही नहीं था. देयर वाज नो चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट शीट. तो सब लोग अपने अपने तरीके से फॉर्मेट बनाते थे. मुंबई में अलग फॉर्मेट चलता था, चेन्नई में अलग फॉर्मेट चल रहा था. बिकॉज आई वॉज टीचिंग एट मुंबई ऑल्सो, आई वॉज टीचिंग एट चेन्नई ऑल्सो. तो मुंबई में अलग फॉर्मेट चलता था, चेन्नई में अलग फॉर्मेट चलता था, दोनों फॉर्मेट सही थे. अच्छा, बीकॉम में भी ये चैप्टर था कॉस्ट शीट. बीकॉम में उसको इज्जत दिया गया था, अलग से चैप्टर था कॉस्ट शीट, वहां पे अलग फॉर्मेट चलता था. तो इतना सब जंबलिंग होता था. तो इंस्टीट्यूट फाइनली इन 2018 वो लोग ने डिसाइड किया कि नई स्टडी मटेरियल में कॉस्ट शीट करके एक चैप्टर होना चाहिए. और वो फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने दिया, भाई ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. आईसीआई विल फॉलो दिस फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. हाँ, वो फॉर्मेट हालांकि कोई लॉ के अंदर नहीं है. इट इज नॉट अंडर एनी लॉ. मतलब जैसे तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013, मतलब तुम एमसीए का वेबसाइट पे जाके बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे, नीचे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिया गया है. एमसीए मालूम है क्या है? ये फुल फॉर्म नहीं पूछा है. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट पे एक्ट्स करके एक टैब है. वो एक्ट्स पे क्लिक करोगे ना तो पहला ही एक्ट या दूसरा ही एक्ट आता है कंपनीज एक्ट. वो कंपनीज एक्ट पे क्लिक करोगे तो सब कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स खुलेंगे. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 डेफिनेशन, चैप्टर 3, चैप्टर 4. हर चैप्टर के अंदर उसके सेक्शंस हैं. और वो सब चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद शेड्यूल्स चालू होते हैं. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2. तो हम तो किस में जा रहे हैं? शेड्यूल 3. वो शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है. बट ऐसा कोई फॉर्मेट कॉस्ट शीट का दिया नहीं गया. तो ये फॉर्मेट किसने दिया है? आईसीआई. किधर दिया है? स्टडी मटेरियल. तो आर वी सपोज टू फॉलो इट? ऑफ कोर्स. कैन यू मेक योर ओन फॉर्मेट? नो. बट पहले क्या होता था, बिकॉज देयर वाज नो चैप्टर ओनली, तो फॉर्मेट ही नहीं था, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाते थे. तो हु इज राइट? Or all are right, because you have not given format, I will follow my format. And there were certain controversies in that format, but all that controversies are removed by making this format. However, this format also has its own flaws, but then we don't have choice, we have to follow this format. But mainly अगर तुम cost sheet का format देखोगे तो cost sheet के format में, why we are talking orally, we can actually go to that format. It is on which page number? You can check. Okay, page number 11. Actually वो page number 11 पे खत्म भी नहीं हो रहा है. It is going to the next page, but you stay on page number 11. चलो, page number 11 पे we are, our objective today is to by heart this format and go. Format of cost sheet. Okay, हर statement का heading होता है. बैलेंस शीट का भी तुम heading देते हो ना, तो likewise heading. What is heading? Cost sheet for the. अभी सब लिखने का क्या? ईयर, सेट, मंथ, सेट नहीं, जो रहेगा वो लिखने का. ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अभी है ना, फिलहाल तुम पर्टिकुलर्स कॉलम पे फोकस करो. वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन रुपीस कॉलम. एनीवेज दैट रुपीस कॉलम भी ज्यादा नहीं है. व्हेन यू विल लर्न बैलेंस शीट फॉर्मेट, यू विल फोकस ऑन द रुपीस पर्टिकुलर्स कॉलम. नो, रुपीस में कैसे लिखने का वो तो जब सम करेंगे तब एक्चुअली तुमको पता चलेगा कि रुपीस में कैसे लिखना है. तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले, कॉस्ट शीट में ना तुम बीच में देखो, बीच में हम लोग ने ना बोल्ड में और रेड कलर के अंदर हेड्स लिखे हैं. बोलो, विच इज द फर्स्ट कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट. विच इज द नेक्स्ट कॉस्ट? Factory, which is also called as which cost? Works cost. Which is the next cost? Which is the next cost? फिर नेक्स्ट पेज पे आओ, और लास्ट में कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल. तो 5 कॉस्ट है. विच इज द फर्स्ट कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट. सेकेंड, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फोर्थ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड फिफ्थ. These are the 5 main heads of cost, or you can say 5 stages. मतलब stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ऐसा stages करके हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे. तो our first stage is to reach up to which cost? प्राइम कॉस्ट. बोलो, प्राइम कॉस्ट में कैसे फाइंड आउट करने का? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वही हम लोग एक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हेन वी से डायरेक्ट मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम। कभी सुना है रॉ मटेरियल कंज्यूम? एक कंज्यूम्ड वर्ड सुना है? किधर सुना है? एनपीओ में भी सुना रहेगा। मेडिसिन कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के टाइम भी तुमने सुना होगा कंज्यूम्ड। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट दिस कंज्यूम? यहां पे फॉर्मूला मत देखो, पहले तुम्हारा फॉर्मूला याद करो। सिंपल फॉर्मूला बोलो, व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच कॉस्ट? अरे नाम क्या है कॉस्ट का? डायरेक्ट मटेरियल। तो इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। इट इज परचेज ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर किसी ने तो पूछा था कि व्हाट अबाउट फ्रेट इनवर्ड, व्हाट अबाउट कैरेज इनवर्ड? अच्छा, ये दो ही खाली खर्चे नहीं है, दूसरे भी हो सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग भी हो सकता है, इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट भी हो सकता है। तो ये सब कॉस्ट को हम किधर लिखेंगे? तो ये फॉर्मूला में उसको क्या करना है? ऐड। आई डोंट नो हाउ और व्हाट यू आर डूइंग इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। शायद तुम कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही ऐड कर देते। यस और नो? ओके, नो इशू। लेकिन अकाउंट्स या अकाउंटिंग में कैसा है, तुमने कैरेज इनवर्ड नीचे लिखा तो भी चलता है, रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट दिस सब्जेक्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे इसको ऐड करने का दूसरा पर्पस भी है, देयर इज अ हायर पर्पस। लेकिन वो हायर पर्पस के लिए हमको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। राइट नाउ मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, ये कॉस्ट शीट में बहुत सारी चीज हिडन है। एक एक करके जब हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तब एनलाइटमेंट होगा। ठीक है, चलो फिलहाल फोकस ऑन बायटिंग द फॉर्मेट। फॉर्मेट में भी हम लोग पहले ही कॉस्ट पे हैं। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई प्रोसीड इनटू द फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में भी कॉस्ट शीट बनाने को आएगा, तो यही फॉर्मेट एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है, यू कैन सी चैप्टर नंबर 4, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग को कॉस्ट शीट बनाने का, तो यही फॉर्मेट एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ओवरहेड्स चैप्टर में भी कॉस्ट शीट बनाने का है, तो यही फॉर्मेट एप्लीकेबल। सो फॉर्मेट will remain the same. I will give simple example. I don't know whether you discussed the advanced accounting का syllabus or not yesterday. वो syllabus में do you have company final accounts? Final accounts of company में balance sheet बनेगा कि नहीं बनेगा? Then there is one chapter called as internal reconstruction. वो internal reconstruction के अंदर after scheme of internal reconstruction they will ask you to prepare balance sheet. वो balance sheet तुमने कौन से chapter में पढ़ा बनाने का? Company final accounts. फिर अमालगमेशन करके एक चैप्टर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो उसमें भी तुमको बैलेंस शीट बनाने का रहेगा। लेकिन वो बैलेंस शीट बनाने का पढ़ा कौन से चैप्टर में? कंपनी। एक चैप्टर है छोटा सा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में स्कीम या बायबैक के बाद बोलेंगे प्रिपेयर बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट किधर बनाने का सीखा? तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। कॉस्ट शीट बनाने का एक सेपरेट चैप्टर है कॉस्ट शीट करके। लेकिन आगे जाके सब्जेक्ट में कहीं पे भी तुमको जरूरत पड़ा, क्योंकि आगे जाके तुमको अगर एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट करना है या तुमको बोलेंगे प्रिपेयर फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ दिस, तो तुम कॉस्ट शीट बनाओगे सीधा। एनीवेज, बोलो पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। चलो, डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला क्या है? 3 चीज को ऐड करना है। फर्स्ट क्या है? ऑफ व्हाट? फिर सेकेंड एड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये लोग का फेवरेट है फ्रेट इनवर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन में वो लोग ने फ्रेट ही लिखा है, कैरेज भी नहीं लिखा है। एनीवेज, बोलो अभी क्या क्या लेस करना है? परचेस रिटर्न। आई होप एवरीबॉडी नोस व्हाट इज परचेस रिटर्न। ओके, सम में आर्ग्यू हम परचेस रिटर्न यहीं से माइनस करेंगे, तो इट्स ओके, यू कैन डू दैट। ऐसा छोटा छोटा चीज इंटर में मायने नहीं रखता है। बोलो नेक्स्ट क्या माइनस करने का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो क्या माइनस करने का?
What is meaning of this scrap value of raw material? Goods nahi, don't use the word goods. Goods is very vague term. When you are in manufacturing, don't use the word goods. तो फिलहाल हम लोग किसके स्क्रैप का बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का स्क्रैप. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल का स्क्रैप? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, आई एम परचेजिंग 50,000 kgs. डू यू थिंक दैट ऑल 50,000 kgs विल बी इन गुड कंडीशन? नो. हमने जब अनबॉक्सिंग किया, सब ओपन किया बॉक्सेस एक्सेट्रा, कुछ 5% विल बी डैमेज्ड, 5% विल बी इन सुपर बैड कंडीशन जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो क्या करें? उसका फेंक देंगे अगर वो सेलेबल नहीं है तो. बट भंगार में तो बेच सकते हैं, तो उसका कुछ तो भंगार मिलेगा. तो वो भंगार का जो वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू, वो हम लोग इधर क्या करेंगे? लेस. सिंपल एग्जांपल, आई परचेज रॉ मटेरियल फॉर 50 lakhs एंड आई गॉट स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000. तो मेरा तो नेट कॉस्ट इज 49,50,000 नो. तो 50,000 से मेरा कॉस्ट कम हो गया. इधर लेस हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज इट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. मतलब मेरा कॉस्ट 50,000 से कम हो गया. स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल विल नॉट बी मोर देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू. तुमने 50 लाख में रॉ मटेरियल खरीदा और स्क्रैप 60 लाख का भेजा, तो मैन्युफैक्चरिंग बंद करते, एक काम करते, रॉ मटेरियल खरीद के भंगार में बेचते. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो बोलो स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल. ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, वो मैंने इंक्लूड किया है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इंक्लूड नहीं है, तो ये मैंने इंक्लूड किया है. व्हाट इज दिस? आउट गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउट गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल? मतलब रॉ मटेरियल उठ के चला गया बाहर, उसको पकड़ा था तो बोला अभी इधर बहुत कंटल आ रहा है, बाहर जाके आते हैं. किसी को रॉ मटेरियल दिया रहेगा. ये क्या बोल रहा है ये बे? ड्राइंग्स में पहले ही बोला हम लोग कंपनी का बात कर रहे हैं. डू यू थिंक शेयर होल्डर फैक्ट्री में आके रॉ मटेरियल उठा के लेके जाएगा? रॉ मटेरियल टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय शेयर होल्डर. डू यू एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग? रॉ मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, रॉ मटेरियल लॉस्ट बाय थेफ्ट, रॉ मटेरियल गिवन अवे एज. रॉ मटेरियल मैं क्यों फ्री सैंपल देगा? रॉ मटेरियल गिवन अवे एज नो चैरिटी. ओके, दो चीज याद रखो, रॉ मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, वॉर एक्सेट्रा. अभी वॉर एग्जांपल आ गया है, बट ये कैटेगरी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है. लेस आउट गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें लेस क्यों किया इसको? क्योंकि मुझे कंज्यूम्ड चाहिए. अगर चोरी हो गया है तो हमने कंज्यूम नहीं किया है, वो चोर ने कंज्यूम किया है. ये जो बाहर फिगर अमाउंट है ना, ये व्हाट इज दिस अमाउंट? देखो कलर भी सेम है, येलो. सो वो जो अमाउंट है दैट इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. वो कंज्यूम हमने किया है इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, बट वो चोरी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, अर्थक्वेक में चला गया, वॉर में लॉस हो गया, वो हमने कंज्यूम नहीं किया है. तो दैट वाज फर्स्ट कैटेगरी. व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. ओके, विच इज द नेक्स्ट वन? अच्छा, बाय द वे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम यू हैव टू कैलकुलेट ऑलमोस्ट, यू नो, इन दिस चैप्टर वो लोग तुमको कैलकुलेट करने बोलेंगे. तो ये दिस इज द, यू नो, दिस इज द टोटल फॉर्मूला. मतलब ये एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है. ऐसा जरूर नहीं है कि हर समय सब कैटेगरीज देंगे वो लोग. आई एम वेरी रेयर परचेज रिटर्न, बहुत रेयर क्वेश्चंस में. हाँ, बट तीन चीज तो हर क्वेश्चन में रहेगा अगर कंज्यूम कैलकुलेट करना है तो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन तो रहेगा. चलो नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है? डायरेक्ट एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट. अच्छा, दो मैंने यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट लिख दिया है, बट डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. दिस इज वेरी सिंपल. यू सेड वेजेस और तुम छूट गए. ऐसा नहीं होता है. फैक्ट्री में जो वेजेस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक वेजेस. मतलब सर फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जब हम लोग वेजेस वर्ड यूज करते हैं ना, नॉर्मली जब हम लोग वेजेस यूज करते हैं तो वो डेली बेसिस का वेज होता है. बट इंडिया में डेली वेजेस होता है या मंथली वेजेस भी बोल सकता है. तो से फॉर एग्जांपल हमने वर्कर को बोला भाई दिन का 1500 रुपया, 8 आवर्स आने का दिन का 1500 रुपया, या उसको बोला मंथली यू हैव टू कम, तेरा मंथली वेजेस इज 25,000.
ओके, अपार्ट फ्रॉम वेजेस विल द वर्कर या फैक्ट्री वर्कर गेट एनीथिंग? खाली वेजेस मिलेगा उसको. दिवाली बोनस, दिवाली बोनस टेक्निकली करेक्ट है बट हमारे सम में आता नहीं है, बट हमारे में आता है बोनस. वो बोनस कब दिया जाता है? अरे वो दिवाली बोनस का बात नहीं कर रहे हम लोग. बोनस कब दिया जाता है? व्हेन द वर्कर इज एफिशिएंट. व्हेन द वर्कर इज एफिशिएंट मतलब वर्कर को तुमने गाजर दिया हुआ है, उसको क्या बोला कि देख भाई ये काम है ना 100 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, उसने 90 आवर्स में कंप्लीट कर दिया तो 10 घंटा बचाया. अच्छा 10 घंटा बचाया तो कंपनी को क्या फायदा है? अरे 10 घंटे का कॉस्ट बचा अभी. अरे ये सब्जेक्ट में एक ही चीज के बारे में सोचना है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट. मेरा कॉस्ट बच गया. अब मेरा कॉस्ट किसके वजह से बचा? बिकॉज वर्कर इज एफिशिएंट. तो वर्कर को रिवॉर्ड करना चाहिए कि नहीं? तो वर्कर को क्या बोलेंगे? 10 घंटे का पैसा बचाना तो इसमें से 20% तेरे को बोनस जा. ऐसा उसको पहले से पता रहेगा कि सरप्राइज देंगे? अरे पहले से पता रहता है वो लोग को, तो ही तो वो एफिशिएंट रहेगा ना. अरे गांव वाले लोग तुम लोग. ओके सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को बोला कॉस्टिंग 160 आवर्स में खत्म करना, बोला ओके, लेकिन तुमने 150 आवर्स में खत्म किया ना, 10 घंटा बचाएंगे तो हम तुमको 50,000 रुपया बोनस देंगे. तो विल आई ट्राई टू कंप्लीट इट 150? यस. लेकिन 160 में खत्म किया, बाद में बोला अरे तुम 150 में करते ना तो हम तुमको बोनस देते. दूसरे दिन कोई वर्कर नहीं आएगा. मतलब पहले बोलना चाहिए था ना. वो सब हम एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वर्कर को बोनस मिलेगा. अच्छा एनीथिंग एल्स दैट वर्कर विल गेट? प्रोविडेंट फंड वर्कर को काम करते करते मिलता है? नहीं. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये सब कभी सुना है? ओके और कुछ वर्कर को मिलता है? प्रॉफिट नहीं. वर्कर को कभी प्रॉफिट मिलता है क्या? ऐसा है प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस होता है, लेकिन छोड़ो हमारे सिलेबस में नहीं, सब बाहर का बात नहीं करने का. ओके फिर वर्कर को कमीशन. वर्कर गुड्स बना रहा है या बेच रहा है? कि वही वर्कर बना के बेच रहा है. मतलब तो ऐसा बोल रहा है होटल में जो खाना बना रहा है वही आके बाहर सर्व कर रहा है और ऑर्डर भी ले रहा है, ऐसा होते हैं होटल? नहीं, कमीशन नहीं आएगा बेटा. ओवर टाइम क्या दिया जाता है? ओवर टाइम. व्हाट इज ओवर टाइम? अपना लेक्चर कितना बजे तक है? 6:45. मैंने 7:15 तक लेक्चर लिया तो आधा घंटा क्या हो गया? नहीं अभी ऐसा ये इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये तो फैक्ट्री में होता है. एक शिफ्ट कितने आवर्स का होता है? 12 घंटा. 8 घंटा. 8 घंटे के ऊपर अगर तुमने लेबर को काम करवाया तो लेबर को क्या देना पड़ेगा? और टाइम. ऐसा हमारे देश में लॉ है. रूल क्या बोल रहे हैं? कौन सा रूल? रूल मतलब किसने बनाया ये रूल? अरे फैक्ट्रीज एक्ट है अपने कंट्री में. तुमको नहीं पता है वो अलग बात है. अच्छा तुमको पता है मोटर व्हीकल एक्ट है, ये सब पता है. तुम वर्कर नहीं हो इसके लिए तुमको नहीं मालूम है ना फैक्ट्रीज एक्ट. अभी रिसेंटली कुछ वेजिस में चेंजेस हुआ था, अभी वो सब लॉ अपने को मालूम. एनीवेज यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय लिखा डस नॉट मीन खाली उसका बेसिक वेजिस आएगा, उसका बोनस, ओवर टाइम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वो सब विल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय. किस चीज का कॉम्पेंसेशन? ठीक है बट ऐसा ऐसा कोई अभी कोई सब में पूछा नहीं है वो लोग ने. ठीक है एनीवेज नेक्स्ट क्या है बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंस. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी सुना है? डायरेक्ट एक्सपेंस का हम लोग ने कितना एग्जांपल लिया था? 5. जरा बताओ कौन से 5 एग्जांपल थे? रॉयल्टी सेकंड, मोल्ड थर्ड, वो फोर्थ था. सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस फोर्थ, स्पेशल डाइस फिफ्थ, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस 1 2 हम आगे आप पढ़ेंगे. बट ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लास्ट कॉलम देखो डायरेक्ट, ये फर्स्ट वाला येलो कलर क्या है? फर्स्ट वाला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. दूसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्या है? ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट. तो ये हमारा स्टेज नंबर 1.
हम लोग को ऑलरेडी मालूम है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बस डायरेक्ट मटेरियल में वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड का ये फॉर्मूला. आगे बढ़े तो ये हो गया स्टेज नंबर 1. अब आते हैं स्टेज नंबर 2. किधर तक पहुंचे हम लोग? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करोगे? ये प्राइम कॉस्ट वर्ड है ना, वो फाउंडेशन में था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. छोड़ जान दो, अभी हम लोग इधर. बोलो नेक्स्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट के नीचे क्या लिखा है? अरे ऐड भी लिखा है ना, वो भी पढ़ो. क्या लिखा है इधर? ऐड विच ओवरहेड्स? फैक्ट्री. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के और 3 नाम है. व्हाट आर द नेम? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स ओवरहेड्स. फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क ओवरहेड. किसी को एग्जांपल चाहिए रहेगा तो पेज नंबर 13 पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर पूरा आधा पेज लिखा हुआ है, उसमें सब एग्जांपल्स ही हैं. अच्छा, यहाँ पे ऐसा सार्वजनिक हेडिंग करके इसके अंदर डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखना है, अंडरलाइन करके उसके अंदर 10 फैक्ट्री ओवरहेड देंगे तो सब लिखने पड़ेंगे. और अकाउंट्स की तरह इसमें नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा. आर यू गेटिंग? ओके चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने लिख लिया. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या करना है? तो हम लोग को एक छोटा सा चीज मिलता है. वो छोटा सा चीज का नाम क्या है? ग्रॉस. ग्रॉस अगर वर्ड आया ना तो आगे नेट भी आता है, लेकिन नेट लिखना नहीं है. देखो यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या करेंगे? ऐड व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. लेस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो हमको क्या मिलेगा? फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. दो ये नेट है लेकिन हम नेट लिखेंगे नहीं. फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. हैव यू हर्ड दिस ओपनिंग, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस? व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? सेमी फिनिश गुड्स. मतलब क्या? सेमी फिनिश गुड्स. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स का मतलब नहीं है, उसका दूसरा नाम है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? इज इट रॉ मटेरियल? इज इट फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल मतलब कैन वी से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0%. फिनिश गुड्स मतलब 100%. मतलब फाइनल कंप्लीट हो गया, वो तो अभी बेचने के लिए रेडी है, 100%. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बिटवीन 0 to 100%. यस और नो? सो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. दो टाइप का स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस में, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. बाय द वे अभी तक कितने स्टॉक आ गए? 2. फर्स्ट वन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ carefully observe this cost sheet up to factory or works cost. Did you observe this? इसमें ना अगर तुमको कनेक्ट करना ही है तो तुम इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से अगर कनेक्ट करोगे ना तो डेबिट साइड सब ऐड किया है, क्रेडिट साइड को माइनस किया. ऑब्वियसली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होता है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री ना, तो वही तो हम ढूंढ रहे हैं. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू रिलेट. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कम्स ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. लेकिन अगर उसको क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना है तो हम क्या करते हैं? एग्जैक्टली द सेम रीजन. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यू डोंट राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट डू यू डू इज यू सबट्रैक्ट इट ऑन द डेबिट साइड फ्रॉम कंज्यूम्ड. तो क्रेडिट साइड के आइटम्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेस. Because what is the name of the statement? Cost sheet. मतलब कॉस्ट ज्यादा होंगे ना. It is not income statement. चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? इधर तक. Have you understood the format? ओके चलो, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है. यहाँ पे 5 टिपिकल आइटम्स आ रहे हैं एंड दीज आर द आइटम्स विच वर एडेड बाय द इंस्टीट्यूट इन द न्यू फॉर्मेट. ये 5 टिपिकल आइटम्स हैं. ये 5 टिपिकल आइटम्स हैं. सी, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. एवरीबडी मस्ट हैव डन फाइनल अकाउंट्स चैप्टर. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में तुमको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है. ये सो ट्रायल बैलेंस में तुमको सब अकाउंट्स के नाम दिए रहते हैं. ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी, ऐसा. तो तुम क्या करते हो? पहले क्लासिफाई कर देते हो ना ट्रायल बैलेंस को, कि ओपनिंग स्टॉक इधर जाएगा, उधर जाएगा, वैसा जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर में भी यू विल बी गिवन वन टेबल जिसके अंदर सब कॉस्ट का लिस्ट दिया रहेगा. तो कॉस्ट का लिस्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई. तो कॉस्ट को देख के सोचना पड़ेगा कि ये कौन है.
सपोज फैक्ट्री रेंट दिया रहेगा तो कहाँ क्लासीफाई करोगे उसको? नहीं, विच ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री रेंट आएगा ना, यस और नो? सपोज रॉयल्टी दिया रहेगा तो कहाँ पे क्लासीफाई करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासीफाई करो। अब ये जो 5 आइटम्स है ना, इसका बेस्ट पार्ट क्या? 5 में से 1, 2 एंड 3, उसमें क्वेश्चन में ही लिख दिया रहेगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मतलब तुमको ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये क्वालिटी कंट्रोल है। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब तुमको ऐसा कॉस्ट का नाम दिया रहेगा, फिर तुमको ऐसा बैठ के सोचना नहीं है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो नाम लिख देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड थर्ड कैटेगरी, विच इज द थर्ड कैटेगरी? दिस इज स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल कैटेगरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। दिस कैटेगरी वॉज क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट, क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट। अगर तुम ग्लोबली भी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखोगे ना, बिकॉज दिस सब्जेक्ट के ऊपर देर आर इंस्टीट्यूट्स, इंडिया में यू हैव सीएमए, आउटसाइड का भी सीएमए है, आउट ऑफ इंडिया का भी सीएमए। इनफैक्ट इफ यू सी यूके में देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज सीआईएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उसमें ये सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है। तो वो लोग ने भी ऐसा सब फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो somehow institute has created this category and we have to remember this category. And what is the best part which I already told you? कि कॉस्ट देख के हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है ओनली फॉर दिस 3, कि ये है तो हमको इसका नाम। However, I can explain. Quality control cost, नाम में ये all the costs which are incurred by the company for quality control. For example, company is giving training to its employees relating to quality. बहुत सारे कंपनीज में क्वालिटी ट्रेनिंग होता है। इनफैक्ट सीए फाइनल में जब ये सब्जेक्ट हुआ करता था, SCMPE, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसके अंदर देयर वाज अ सेपरेट चैप्टर जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन था। तो 4 टाइप के क्वालिटी कॉस्ट हुआ करते थे, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। तो बहुत सारे कॉस्ट है ना कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल के लिए इनकर करते हैं। खाली इंस्पेक्शन नहीं होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं, बहुत सारे कॉस्ट कंपनी इनकर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को एप्पल या गूगल में नौकरी लगेगा तो पहले दिन उसको जाके डाल नहीं देंगे उसको उधर। इनफैक्ट तुम भी जब आर्टिकलशिप जाओगे बिग 4 में, पहले वीक में तो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, तो तुमको पहले ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा। वहां पे तुमको पूरा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सिखाया जाएगा कि कैसे काम करना है, व्हाट इज अ timeline etc, whatever, how to work. इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट एवरी बिग 4 में वो लोग के खुद के ये होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इट इज अ क्लोज सिस्टम, हर एक के लैपटॉप में इंस्टॉल करके तुमको देंगे, लैपटॉप भी वो लोग ही तुमको देंगे, और क्लोज सिस्टम होता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये दोनों सेम बिग 4 में और ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ उसी प्लेटफॉर्म पे चैट कर सकते हैं। वो सबका ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्वालिटी ट्रेनिंग करके होता है जहां पे हम एक फिनिश गुड्स बना रहे हैं। सी देयर आर सम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ना, इंडिया में भी तुम अगर कुछ स्पेशली फूड आइटम, बेबी या चिल्ड्रन का आइटम बना रहे तो कुछ तो स्टैंडर्ड फूड स्टैंडर्ड्स है, तो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई ये क्वालिटी हमको मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्वालिटी ट्रेनिंग का खर्चा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली और यू कैन से फॉर्चुनेटली वो लोग तुमको ऐसा आइडेंटिफाई करने नहीं बोलेंगे कि भाई ये क्वालिटी कंट्रोल। Okay, which is the next one? Research and development. In the name only it is there. अभी इसमें ज़्यादा क्या बोलने का। Next one is, you remember the name, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। Right now I don't want to speak much about this category. Administrative overheads relating to production activity. Okay, which is the next one? Credit for recoveries, scrap, byproduct, miscellaneous income. My question is इसको less क्यों किया है? ओके, रिकवरीज छोड़ दो, बाई प्रोडक्ट्स छोड़ दो, मिसलेनियस इनकम छोड़ दो, स्क्रैप वर्ड देखो यहाँ पे, स्क्रैप। तो लेस क्यों किया इसको? आई थिंक फॉर्मेट में और एक बार पहले एक स्क्रैप वर्ड आया था। हाँ, तो ये स्क्रैप और वो स्क्रैप में फर्क क्या है?
वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप था। तो ये कौन सा स्क्रैप है? फिनिश गुड्स का स्क्रैप। दिस इज दैट स्क्रैप विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल, हम लोग शर्ट बना रहे थे, तुमको क्या चाहिए? क्लॉथ। क्लॉथ को पहले क्या करना पड़ेगा? कट करने के बाद वो जो कटिंग्स बच जाएंगे ना, दैट इज दिस स्क्रैप। दोनों का प्लेसिंग इंस्टीट्यूट कभी कभी क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज करता है, तो स्टूडेंट एग्जाम में बैठ के सोचता है इधर ऊपर माइनस करो कि नीचे, क्या फर्क पड़ेगा? मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आंसर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा आंसर सेम आएगा, लेकिन तुमने अगर ऊपर से नीचे कर दिया तो उतना मार्क्स जाएगा। सो कभी कभी वो लोग लिख के दे देते हैं, इट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप, या कभी लिख के देंगे अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पर इसको लेस क्यों किया है? अरे लेस इसके लिए किया है बिकॉज इट इज इनकम। सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन से साइड पे आता था? क्रेडिट साइड। तो उसको हम डेबिट साइड पे क्या कर रहे हैं? लेस। एंड लॉजिक एक्चुअली इट इज नॉट इनकम, ये पिद्दी सा इनकम है वो, इट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 करोड़ रुपया है और स्क्रैप जनरेट करके मेरे को लाख रुपया मिला, तो माय तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली 99 lakhs, तो इसके लिए उसको लेस किया गया। चलो, विच इज द नेक्स्ट कैटेगरी? विच पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग। देयर आर 2 types of packing, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दिस। प्राइमरी पैकिंग मतलब क्या? प्राइमरी पैकिंग मतलब विदाउट विच प्रोडक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। 2 examples I will give. टूथपेस्ट, मेन क्या है टूथपेस्ट में? ट्यूब के अंदर का पेस्ट, तो ट्यूब इज प्राइमरी पैकिंग। तुम जाके थोड़ी बोलोगे पेस्ट दे दो, खाली ट्यूब रख लो। दूसरा एग्जांपल, गैस सिलेंडर। अभी तो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, गैस सिलेंडर। उसको बोलेगा गैस दे दो, सिलेंडर नहीं चाहिए। प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब वो कभी इंजेक्शन खाया रहेगा, तो इंजेक्शन का वो जो बॉटल रहता है उसके अंदर लिक्विड रहता है, वो कांच का बॉटल इज विच पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग। लेकिन वो कांच का बॉटल बाहर एक व्हाइट कलर के डब्बे में रहता है, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग इज एट्रैक्टिव पैकिंग, इट इज इनकर्ड फॉर selling the product. If it is incurred for selling the product, then it will be classified under selling and distribution. Are you getting this? ये प्राइमरी पैकिंग इधर आके बैठा है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन मैं चैप्टर नंबर 3 में दूंगा रिजल्ट के बाद। नॉट नेसेसरी है तो इधर लिखेंगे ऑफ कोर्स। प्राइमरी पैकिंग तो होगा ना हर प्रोडक्ट। रास्ते पे शर्ट बिकता है, उसका प्राइमरी पैकिंग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? बॉटल है। प्राइमरी पैकिंग मतलब विदाउट विच बेसिकली प्रोडक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। अगेन ये कैटेगरी में भी ऐसा ही है। तुमको अगर लिस्ट में नाम दिया रहेगा तो तुमको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये प्राइमरी पैकिंग है, वो लोग सामने से लिख के देते हैं इट इज फॉर प्राइमरी पैकिंग। एंड पूरे सब्जेक्ट में प्राइमरी पैकिंग मैक्सिमम 3 बार आया, और एक बार तो चैप्टर 3 में है। वो चैप्टर 3 में जब आएगा तब हम यहां पे आके डिस्कस करेंगे कि ये इधर क्यों बैठा है। एनीवेज, चलो, वी वर एट विच स्टेज? फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में 5, अरे 5 चीज तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब तुमको पहले प्राइमरी पैकिंग याद आया तो तुमने ऊपर लिख दिया, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अरे क्योंकि ये फॉर्मेट कोई लॉ में थोड़ी दिया हुआ है। रे बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। वो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। कौन है तू? हु आर यू टू चेंज द फॉर्मेट? बट इधर तुम कर सकते हो कि ऊपर नीचे। हाँ, लेकिन प्राइमरी पैकिंग को तुम उठा के इधर नहीं निकाल सकते। हाँ, वो अलाउड नहीं है। वो क्यों अलाउड नहीं है? वो चैप्टर 3। चलो, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट, फटाफट बोलो कौन सा 5 चीज ऐड करना है, और अदर 4 ऐड करना है, 1 लेस करना है। बोलो व्हाट इज ऐड? क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट रिलेटिंग टू व्हाई? बिकॉज आगे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ रहा है। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स व्हाट? जनरल। ओके, चलो, तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या ऐड करेंगे?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? बाय द वे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट दैट इज फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तुमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स या मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल अकाउंट्स किया है, उसका अगर तुमको ट्रेडिंग अकाउंट याद रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए कॉस्ट शीट में ऊपर का सब चीज करना पड़ेगा. चलो अभी आगे का फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. वी हैव जस्ट कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट पेज. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद दो ही ऐसे कॉस्ट हैं जो तुम पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखते हो. कौन से दो कॉस्ट तुम पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल का एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया. ऑडिट फीस, स्टाफ सैलरी, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट, ये सब इसके अंदर आएगा. जनरल मैनेजर सैलरी, ये सब जन. एंड लास्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कैन यू सी वन दैट इज विच पैकिंग? सेकेंडरी पैकिंग. तो दो टाइप का पैकिंग. कौन सा है सेकेंडरी पैकिंग? मतलब टू मेक द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव फॉर सेलिंग द. तो लास्ट में तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. रिमेंबर लास्ट वन पॉइंट, जब तुम एफएम में जाओगे या कभी भी अकाउंट्स में मुझे नहीं लगता ऐसा पॉइंट आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट ये सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग है. आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी होमवर्क है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बैट करने का और नोटबुक में एक बार लिख के आने का घर पे बैठे. बेटर है कि तुम पहले बायट करो, बाद में देखे बिना लिखो. पहले रफ में लिखना, देखे बिना, वरना नोटबुक में कटिंग होगा, नहीं बाद में सफेदी पूछना पड़ेगा उसके ऊपर, वाइटनर.